things are going fine. So guys, the order for today is that we'll quickly finish the inflation part, and then we'll come to the chapter on once in a lifetime crisis, once in a century crisis on COVID-19, which is the first chapter of the economic survey. So we'll be covering that in the latter part of today's lecture, and in the former part we'll complete this reading. And let's quickly. Oh, I've not casted my screen yet. Give me 1 second. I need to drag the PDF on one screen. Yes. Yep. So if you see what we are covered, we have now almost covered this reading as well, prices and inflation, and after this we are going to cover this particular reading, which will take us a couple of lectures, today's lecture and the one on Thursday. We'll be covering this, and then we will move on to the final three readings that we have, each of which will require one class each. One will be required for state of economy, couple of classes, and then fiscal development, it will require a couple of classes, and then this will require one class. So these are the 5 classes left, and then another class will be required for this particular chapter. So in all 7 to 8 more classes are required. So I think yes, I will do that, Sakshi. I've been extremely busy earlier with my health and now with the college admissions, so there was no time left to do anything else. Now that I have relatively more time, I'll be able to sort these things out. Now let's move to our reading which we were covering, which was not this, it was prices and inflation. Yeah. So हमने prices and inflation में क्या क्या बात करी थी ये भी एक बार देख लेते हैं. हमने इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन के बारे में बात करी थी. व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ इट. देन वी हैड टॉक्ड अबाउट हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है. हेडलाइन इन्फ्लेशन इंडिया के केस में CPI कंबाइंड, वो हम हेडलाइन बोलते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव CPI एग्रीकल्चरल लेबर, यू हैव CPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स, जिससे जो लेबर ब्यूरो देता है, जो 2016 का बेस हो गया, एंड द फैक्ट दैट इट्स लिंक टू योर DA. Then you have CPI rural labor. Then apart from that we talked about कि ये जो बास्केट बनती है CPI की, ये कैसे बनती है. ये टोटल 6 ग्रुप्स इसमें आते हैं. We had talked about those 6 groups as well, if you remember. We had talked about that it is made out of these 6 groups. Let me just zoom it a little. Yeah. इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं. Yeah. So if you see this, sorry guys. Yeah. Yeah. So the maximum weightage here is that of food items. So these are the 6 items. You have number 1, you have food and beverages, then you have your miscellaneous items as number 2, then you have clothing, and then you have housing, and then you have fuel and light, and then you have pan, tobacco and intoxicants. So we have talked about these 5 items being there in the inflation, these 6 factors there in the inflation basket or the CPI basket. तो याद रखना ये 6 एलिमेंट्स का नाम याद रख लेना कि ये 6 एलिमेंट्स आते हैं CPI बास्केट में. Now one of the reasons that we had talked about inflation was कि हमारा जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा था इनिशियली in the first period, जो कोविड का फर्स्ट वेव वाला ड्यूरेशन था, उसका मेन रीज़न था हमारा कोविड वाला, प्री कोविड नहीं, कोविड वाला जो वेव 1, एंड उसमें फूड इन्फ्लेशन जो था वो बहुत हाई था. ठीक है. एंड बिकॉज ऑफ इट वी हैड सीन
बिकॉज ऑफ इट जो हमारा इन्फ्लेशन है वो 6% का जो हमारा बैरोमीटर है, ठीक है। ऑल्सो रिमेंबर द फैक्ट कि हम इन्फ्लेशन को 2 से 6% के बीच में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, एंड वो 6% के बैरोमीटर से ऊपर ऊपर चल रहा था इन्फ्लेशन, ठीक है। सो दैट इज समथिंग ऑल्सो दैट यू नीड टू रिमेंबर. Then apart from that, we had also talked about कि ये प्रोसेस बनता कैसे है, वाई इन्फ्लेशन इज़ गुड, या इन्फ्लेशन कितना ठीक है, इन्फ्लेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं टिपिकली. we saw that part as well. and कोर इन्फ्लेशन एंड नॉन कोर इन्फ्लेशन. किसी को याद है कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, नॉन कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? Anyone remembers? Core inflation, non-core inflation? Core inflation will be in our hand, like non-fuel inflation. सौजन्या बताओ क्या? Yes, सौजन्या. We can control the core inflation, like it will be in our hand. कौन सा होता है? What is it technically called? Non-food and non-fuel goods. क्या non? Non-food and non-fuel. Non-food and non-fuel inflation is core inflation. याद रखो guys, these are important terms. Core inflation, non-food and non-fuel. Just a second guys. Sorry guys, my kid is a handful at times. Yeah. So core inflation is non-food, non-fuel, and because कोर इन्फ्लेशन जो है दैट इज़ समथिंग दैट इज़ इन आवर हैंड्स, हम कंट्रोल कर सकते हैं. दिस इज़ नॉट इन आवर हैंड्स, एज इन केस मोस्ट ऑफ योर मदर्स वुड हैव फाउंड आउट दैट इंद्र देवता को, एटलीस्ट जो दिल्ली में थे, इंद्र देवता को कंट्रोल नहीं करा जा सकता. एंड फ्यूल जो है वो टिपिकली 80% 85% ऑफ दैट वी आर इम्पोर्टिंग. सो वट एवर द ओपेक कार्टेल सेज, I mean, and whatever is the demand, for example, these days the demand for oil is huge, and there's not much of supply from the OPEC market, therefore you're seeing a lot of fuel inflation. So ये कंट्रोल में नहीं है इन्फ्लेशन, बाकी सारे इन्फ्लेशन हम जनरली कंट्रोल में ला सकते हैं, बट स्टिल हम फूड के एस्पेक्ट में काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, एंड वी विल सी हाउ, ठीक है. एंड दैट इज़ वन एस्पेक्ट दैट आई एम ऑल्सो वर्किंग इन अ प्रोजेक्ट विद नीति आयोग, वेयर वी आर ट्राइंग टू मैनेज दैट. अच्छा, फ्यूचर में इन्फ्लेशन इमीडिएट पॉइंट पे, ये नहीं कि आपने पहले मार्केट में देख रहे हो कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं एंड देन आप रिएक्ट कर रहे हो. इवन बिफोर मार्केट में प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कैन यू प्रिडिक्ट कि अच्छा बढ़ सकते हैं? फोरकास्टिंग जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में, कि हम वेदर डेटा से लेके क्या कहते हैं सैटेलाइट डेटा को लेके कैन वी फोरकास्ट कि किसी चीज़ की कमोडिटी की डिमांड एंड सप्लाई में गैप हो सकता है, एंड देन इमीडिएटली बिफोर दैट हैपन्स इन द मार्केट यू कम अप विद अ सोल्यूशन. सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग दैट मी एंड सम मेंबर्स इन नीति आर वर्किंग ऑन. सो ये तो इसीलिए वी विल सी दैट फूड इन्फ्लेशन, ऑल्दो it is basically not in our hands, but we do try to control it, and we take measures for it. And then lastly we talked about the base effect, कि इन्फ्लेशन जो है वो दो फैक्टर्स की वजह से हो सकता है. अगर आपको टिपिकल इन्फ्लेशन दिख रहा है तो उसका दो रीजंस हो सकते हैं. या तो है कि मोमेंटम चल रहा है, प्राइसेस में एक्चुअली में इंक्रीज है, या फिर हो सकता है कि बेस इफेक्ट हो, ठीक है. अगर बेस बहुत लो हो तो इन्फ्लेशन आपको ज़्यादा दिखाई देगा. एज वी हैड टॉक्ड अबाउट, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में बात करी थी, अगर एक स्टूडेंट 10% मार्क्स लेके आया, 10 आउट ऑफ 100 लेके आया, एंड देन 20 आउट ऑफ 100 लेके आया, वो उसका 100% का इंक्रीज हो जाएगा. सो उसका बेस इतना कम था कि परसेंटेज का इंक्रीज बहुत ज़्यादा हाई दिखाई देगा. whereas someone who is increasing the marks from 80 to 100 is momentum basically, कि उसका एक्चुअल में इंक्रीज हुआ है, और परसेंटेज में वो इतना दिखाई नहीं देगा क्योंकि बेस इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है. So these are the factors that we need to consider. Then just a second guys. Hello. Yes guys. So let's see where we have talked about this part. इन्फ्लेशन जो है, इफ़ यू सी, हमारा CPI का इन्फ्लेशन 6.6% दिखा रहा है, एंड WPI का कम दिखा रहा है. वील टॉक अबाउट दैट एज वेल. मेजरली इन्फ्लेशन किस वजह से हो रहा है? फूड इन्फ्लेशन की वजह से हो रहा है.
ठीक है, एंड सर्विसेज की इन्फ्लेशन की वजह से हो रहा है, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज बढ़ रही हैं, विच इज़ नॉट रिफ्लेक्टेड इन योर टिपिकल इन्फ्लेशन, विच इज़ ओनली रिफ्लेक्टेड इन मिसलेनियस एस्पेक्ट। याद रखना गाइज, ये मिसलेनियस में दिखता है आपको। मिसलेनियस के अंदर यू हैव अ ह्यूज यू हैव एन एलिमेंट ऑफ हेल्थ एंड यू हैव एन एलिमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट जो एक्सपेंसिव हो रहा था, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट यू सी। देखो एकदम से देखो आपका फूड इन्फ्लेशन देख रहे हो ना, एकदम से इंक्रीज़ किया, एंड हेडलाइन इन्फ्लेशन भी इंक्रीज़ किया। दैट इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। एंड देन WPI ऑन दी अदर हैंड, WPI जो है वो गिरा है। वी टॉक्ड अबाउट कि WPI इसलिए गिरा है क्योंकि उसके अंदर फूड का वेटेज जो कम है। ये चीज़ समझ में आएगा। CPI के अंदर फूड का वेटेज 45% है, WPI के अंदर फूड आर्टिकल्स का वेटेज जो है वो 15% है। तो समझ में आया है कि क्योंकि वेटेज कम है इसीलिए फूड प्राइसेस का इम्पैक्ट WPI पे कम होगा और CPI पे ज़्यादा होगा। डिड यू गेट दिस? कैसे? कैन समवन टेल कैसे? Sorry guys, there was admission call. Yeah. So what happens is that because of this food inflation, because food के prices बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे थे, तो अब फूड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो इट्स समथिंग लाइक कि आपके पास पेपर्स हैं, एक पेपर का वेटेज 45% है, एक पेपर का वेटेज दूसरे पेपर का वेटेज 15% है, और इस पेपर में आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ओवरऑल वो इंडेक्स जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो समथिंग लाइक दैट सेमेस्टर में मान लो उस तरीके से यू कैन टेक इट। जस्ट अ सेकंड। ओके, सो दिस इज हाउ दिस एंटायर थिंग वर्क्स। एंड तभी आप देख, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इफ़ यू सी WPI के अंदर यू विल सी मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स, नॉन फूड मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है ना। इनका प्राइसेस कम क्यों हुआ होगा गाइस? इनका प्राइस देखो, बहुत फ्यूल का तो कम हुआ ही, इसका प्राइस क्यों कम हुआ? नॉन फूड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का, नॉन फूड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का प्राइस कम क्यों हुआ गाइस? एनी आइडिया? कोविड के टाइम पे देखो ये क्या कहते हैं, बहुत कम से ग्रो करा, ये भी बहुत कम था, ये भी बहुत कम था, ये भी बहुत कम था। क्योंकि उनका डिमांड ही नहीं था। एग्जैक्टली जब मार्केट में डिमांड ही नहीं है, और मार्केट में आप पहुंचाओगे कैसे? आप ये बताओ, मैन्युफैक्चर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या चाहिए? कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करने के लिए लेबर चाहिए। जब आपके पास लेबर ही नहीं है तो आप उसको मैन्युफैक्चर, रॉ मटेरियल, लेबर, ये सारी तो चीज़ें आपके हैं ही नहीं। पूरी कंट्री शटडाउन पड़ी हुई है, लेबर अपनी चल के घर पहुंच रही है, तो आप कहाँ से रॉ मटेरियल सोर्स करोगे और कहाँ से आप लेबर लेके आओगे? आपकी मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई तो उसके कोई डिमांड नहीं है, जब डिमांड नहीं है तो प्राइसेस नहीं है। सो देयर बाय यू कैन सी कि इन ऑल दीज पीरियड आपका मेजर सोर्स और मेजर वेटेज इन दी WPI इज़ नॉट इंक्रीजिंग, और दूसरी तरफ फ्यूल एंड पावर डिक्लाइन कर रहा है। तो दीज आर हैविंग, ये 55 एंड 13% ऐड कर लो, ये 68-69% जो है, with such a huge weightage, this item is not growing, in fact is going in negative direction। तो ये पूरे के पूरे इन्फ्लेशन को, WPI इन्फ्लेशन को नीचे ले जाएगा। बट डू रिमेंबर गाइज, WPI इन्फ्लेशन मोर रिफ्लेक्ट्स हु, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर। एग्जैक्टली, इट्स अ प्रोड्यूसर्स एंगल टूवर्ड्स इन्फ्लेशन, ठीक है। एंड याद रखना कौन देता है, UPSC यूजली ऐसे क्वेश्चन पूछती है। आपको लग सकता है कि ये इनोकुअस घटिया सा चीज़ें मार्क करी हुई है, बट इफ़ यू सी क्वेश्चंस दैट UPSC आस्क्स, वो ऐसे चीज़ें पूछता है प्रीलिम्स में, ठीक है ना। तो यस, sorry to disturb. So I didn't understand the food thing कि कंज्यूमर इंडेक्स में उसका वेटेज ज़्यादा था और यहाँ क्यों कम था? क्योंकि अलग अलग तो ना, अलग अलग वो है ना। जब मैं कंज्यूमर के बजट में देखता हूँ, ठीक है, तो कंज्यूमर के बजट के अंदर मैं कंजम्पशन ज़्यादा करता हूँ फूड की। ये एज एन फ्रॉम एन एंगल ऑफ अ प्रोड्यूसर सोचो एंड फ्रॉम एन एंगल ऑफ कंज्यूमर सोचो। कंज्यूमर का इन्फ्लेशन हम कैसे निकालते हैं? कंज्यूमर से जाके सर्वे करते हैं और पूछते हैं कि आप क्या कहते हैं, कितना कितना खाते हो। फॉर एग्जांपल तुमसे पूछा जाए, तुम कहोगे कि मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में ये चीज़ खाई, ठीक है, मैंने इतना स्पेंड किया फूड आइटम्स पे, फॉर एग्जांपल इतना मैंने स्पेंड किया ट्रैवल पे, इतना मैंने स्पेंड किया हेल्थ पे। इस तरीके से तुम सर्वे को आंसर करोगी, राइट?
तो मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस के लिए अगर मैं ओवरऑल देखूं तो फूड का जो वेटेज है उनके बजट में वो अराउंड 40 to 45% है। अब समझ में आया कि वेटेज कैसे आया ये। हाँ सर। प्रोड्यूसर के केस में क्या है, प्रोड्यूसर के केस में जो जो जिस जिस चीज़ की प्रोडक्शन करता है हम उनका सर्वे कर रहे हैं। हम मार्केट में प्रोड्यूसर लेवल पे जाके देखते हैं। तो हम फिर जाके देखते हैं कि प्रोडक्शन के अंदर एट होलसेल मार्केट के अंदर या फिर प्रोडक्शन गेट के ऊपर हमारी फूड आइटम्स के साथ क्या हुआ, हमारी मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स के साथ क्या हुआ, ठीक है, और फिर हमारी ये फ्यूल आइटम्स के साथ क्या हुआ। ये मेजर जो आइटम्स हैं। बट इसमें हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि अच्छा ये जो बेचने वाले हैं और इनका वेटेज कैसे डिसाइड होता है कि अगेन इनका वेटेज का अलग तरीका है कि इकोनॉमी के अंदर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज है रादर देन बजट में। यहाँ पर तो हम इन कंज्यूमर के बजट का देखेंगे ना, यहाँ हम इकोनॉमी के हिसाब से सोचते हैं कि क्या वेटेज होना चाहिए। सर लेकिन मेरा डाउट यह है कि जैसे प्रोड्यूसर को अगर पता है कि कंज्यूमर का फूड का डिमांड बढ़ गया है तो वो भी फूड को ज़्यादा वेटेज देने लगेगा ना। नहीं, बट हम ये नहीं कह रहे ना कि ये हम उसके बजट के बारे में बात कर रहे हैं। हम उसके बजट के बारे में थोड़ा ना बात कर रहे हैं। हम तो इनका जो वेटेज का तरीका है इट्स डिफरेंट फ्रॉम कंज्यूमर्स का वेटेज का तरीका। यस यस सजल। नो सर, जैसे कि सीपीआई में फूड का ज़्यादा डिमांड है तो सर प्रोड्यूसर्स भी तो ज़्यादा ही सप्लाई मैन्युफैक्चर करेंगे। नहीं, बट हम वो उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं ना। ये जो है ये फिक्स्ड है, ये आपने सर्वे करके फिक्स कर दिया। आप इसको 40% से 50% नहीं कर सकते हो। ये तो वेटेज है गाइस, ये वेटेज है। दिस इज लाइक CPI इज इक्वल टू वेट 1 इंटू प्राइस 1, वेट 2 इंटू प्राइस 2, ऐसे वेट 6 इंटू प्राइस 6। ये जो वेट्स हैं ये फिक्स कर दिए गए हैं 2012 के सर्वे से, 2012 के बेस ईयर से। इसके अंदर अगर ये जो आइटम है ये फूड की आइटम्स हैं तो इनका वेट जो है वो 45% फिक्स्ड है। WPI के अंदर भी ऐसे ही हमारा वेट है एंड प्राइसेस हैं, वेट 2 है एंड प्राइसेस हैं, वेट 3 है और प्राइसेस हैं। इनके वेट भी 2010 के हिसाब से फिक्स कर दिए गए हैं। 2000 वेट तो चेंज भी हो सकता है ना। वेट ऐसे नहीं चेंज होता ना तनिष्का। वेट तो चेंज होने के लिए पूरा सर्वे फिर से करना, आपको पूरा प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा और गवर्नमेंट फिर नोटिफाई करेगा कि अच्छा अब हम नया बेस ईयर ले रहे हैं। आप बेस ईयर थोड़ा ना बार बार चेंज कर सकते हो। सर जैसे आपने बोला था अगर हम ऐसे वेट्स ले रहे हैं तो 2012 में उसका वेट बहुत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इस तो इट इज़ नॉट अ ट्रू रिफ्लेक्शन। आप ये मत सोचो कि ये जो CPI है बिल्कुल परफेक्ट बता रहा है। हो सकता है आज की ग्राउंड रियलिटी बहुत डिफरेंट हो। 2012 में आप इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करते थे, आप उसकी तरफ से ऐड नहीं यूज़ कर आते थे आपके पास, तो उसके आपका एक्सपेंडिचर नहीं होता था, बट आज आपका होता है। तो ये 2012 का बेस जो चल रहा है इसको पहले आप रिवाइज करोगे और फिर इनके नए वेट्स निकालोगे। आप हर साल नया वेट्स नहीं निकाल सकते। इट इज़ लाइक अ स्केल, मेजरिंग स्केल। आप मेजरिंग स्केल हर साल चेंज नहीं कर सकते। आप मेजरिंग स्केल 10 साल में एक बार चेंज कर सकते हो कि अच्छा ठीक है यार हम आइटम्स देख रहे हैं, अब किस आइटम की कितनी इंपॉर्टेंस हो गई इकोनॉमी में। तो यहाँ पर ये जो वेट्स हैं ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेट्स हैं कि 45% वेट्स फूड को मिलेगा एंड देन 28% वेट क्या मिसलेनियस आइटम्स को मिलेगा। और ये प्रोड्यूसर के हिसाब से वेट्स हैं कि कंट्री के अंदर, और प्रोड्यूसर का सर्वे कैसे है, ये कंट्री के अंदर प्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस है। हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की, तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स की, नॉन फूड मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स का जो वेट है वो 55% है। अगर इसमें इसके अंदर और इसके अंदर दोनों में फूड का वेट 45% कर दोगे तो इसके अंदर भी तो इम्पैक्ट उतना ही आ जाएगा। बट यहाँ पर हम प्रोड्यूसर के एंगल से देखते हैं कि कंट्री के अंदर प्रोडक्शन के अंदर, कंट्री के ओवरऑल प्रोडक्शन में किसका कितना इंपॉर्टेंस है। फूड आइटम में प्रोडक्शन में इतना इंपॉर्टेंस नहीं है हमारा मेजर इंपॉर्टेंस जो सबसे ज़्यादा वेटेज आ रहा है वो इससे आ रहा है, क्या कहते हैं, नॉन फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स है। सर वन लास्ट क्वेश्चन। यस सर हम जब हर साल CPI निकालते हैं तो हर साल नहीं, हर महीने। ओके, हर महीने निकालते हैं तो वो चेंज होते रहता है। बिल्कुल, हमारा बेस ईयर एक ही रहता है। बेस ईयर यही रहता है, वेट सेम रहते हैं, हर महीने ये चेंज होता रहता है। अच्छा,
प्राइस चेंज होती है उसके ऊपर से इन्फ्लेशन पता चलता है। बिल्कुल एग्जैक्टली ओके सर। अब समझ में आया गाइस सबको ये चीज़ फिक्स्ड है ये डब्ल्यूज सारे फिक्स हैं सिर्फ प्राइसेस चेंज हो रहे हैं ये वेरिएबल है और आप अल्टीमेटली क्या देख रहे हो न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस दैट इज व्हाट इज बेसिकली इन्फ्लेशन और इसको हम इंडेक्स कर देते हैं बेसिकली बताओ सर फिर बेस ईयर का क्या मतलब यहाँ पर वो है? क्योंकि कहीं ना कहीं से तो बेस लोगे ना आपके मार्क्स कितने में से आए ये तो बताओगे सर मतलब ओल्ड प्राइस वो बेस ईयर की ली जाती है? नहीं 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 उसमें आप फिक्स कर देते हो वेट्स बेस ईयर का मतलब है कि आपने वेट्स जो कौन से ले रखे हैं वो कौन से ईयर के ले रखे हैं और जब हम 2012 का बताते हैं कि 2012 हमारा बेस ईयर है तो 2012 का कोई पर्टिकुलर मंथ होगा फॉर एग्जांपल जुलाई ठीक है उस जुलाई में आपने सीपीआई को पुट कर दिया 100 नेक्स्ट मंथ जो है अगर अगस्त 2012 के अंदर ये हुआ 104 तो आपका 4% इन्फ्लेशन है तो आप बेस ईयर में दो चीज़ें करते हो एक आप वेट्स रिवाइज करते हो और सीपीआई का जो ओवरऑल इंडेक्स की वैल्यू है उसको आप 100 कर देते हो उस मंथ के लिए और वहां से फिर से चेक करना शुरू करते हो कि अच्छा अभी ये कैसे बढ़ रही है फॉर एग्जाम्पल अभी ये 160 के अराउंड है अभी सीपीआई की वैल्यू अराउंड 160 के अराउंड है ठीक है और 2012 में 100 थी तो दो चीज़ें कर रहे हो आप ये रिवाइज कर रहे हो और उसकी वैल्यू जो ओवरऑल वैल्यू है उसको 100 पे ले जाते हो अब जब नया रिवीजन आएगा फिर फॉर एग्जाम्पल रुको फॉर एग्जाम्पल 2022 के अंदर अगर नया रिवीजन आ जाता है और कहते हो कि 2017 इज माई न्यू बेस ईयर 2017 इज माई न्यू बेस ईयर 2018 इज माई न्यू बेस ईयर तो मान लो जुलाई 2018 को अगर आपने नया बेस ईयर मान लिया तो दैट विल बी सीपीआई इस मंथ के लिए हो जाएगा 100 और यहाँ से फिर से सारी चीज़ें फिर से कैलकुलेट होनी शुरू हो जाएंगी सर इन शॉर्ट हमें इस फॉर्मूले से वो रेट निकालना है एंड देन फिर कंपेयर करना है 100 से राइट सर कंपेयर करना है 100 से नहीं एक्चुअली हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते हैं करिश्मा हम 100 से कंपेयर नहीं करते हम इन्फ्लेशन देखते हैं ईयर ऑन ईयर तो अगर मुझे देखना है कि अक्टूबर में कितना इन्फ्लेशन था तो अक्टूबर 21 माइनस अक्टूबर 20 अपॉन अक्टूबर 20 इस तरीके से देखूंगा तो यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू 170 होगी अगर यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू 160 होगी और ये इंडेक्स की वैल्यू बेसिकली 160 होगी तो 10 अपॉन 160 दिस विल बी द इन्फ्लेशन बट ये 160 धीरे धीरे करके पहुंचा है ये 160 की वैल्यू या 170 की वैल्यू सीपीआई की 2012 के अंदर 100 थी ये है ये कंसेप्ट और कोई डाउट गाइस तो धन्यवाद समझ में आया करिश्मा यस करिश्मा यस सर आया समझ में नो सर हाँ बताओ क्या नहीं समझ में आया जब नहीं आया तो बताओ क्या नहीं समझ में आया बताओ सर लाइक व्हेन यू सेड 10 upon 100 उसके से एक्चुअली आई wasn't able to hear you. I'm facing network issue. अच्छा रुको नहीं ये तो एडमिशन्स का डेटा है देखो हम क्या करते हैं हमें एक कंपैरिजन के लिए बेस ईयर चाहिए होता है बेस ईयर पे क्या होता है हम बेस ईयर पे सारी वैल्यूज़ को रीसेट करते हैं कई बार कंप्यूटर में आता है ना रीस्टार्ट या रीसेट का अगर ऑप्शन आ जाता है तो फैक्ट्री सेटिंग जो होती हैं देखा है ना मोबाइल में फैक्ट्री सेटिंग्स यस और नो Yes sir. ठीक है मोबाइल रिमोट्स में भी होता है कई बार फैक्ट्री सेटिंग उसको प्रेस करो तो ये फैक्ट्री सेटिंग की तरह है तो आपने फैक्ट्री सेटिंग करते के साथ ही सब कुछ 0 पे ले आया सब कुछ 100 पे ले आया ठीक है सबसे पहले तो ये किया और जितने भी आपके वेट्स थे W1 से लेके W6 उन सबको आपने रिकैलिब्रेट किया टू रिफ्लेक्ट की इकोनॉमी में क्या है अगर टाइपराइटर नहीं यूज़ हो रहा तो उसको हटा दो उस प्रोडक्ट को माउस अब यूज़ हो रहा है तो उसको इंक्लूड कर दो अगर पुराने वाले टीवी नहीं यूज़ हो रहे तो उसको हटा दो अगर नई LEDs आ रहे हैं तो उसको इंक्लूड करो तो आप नए नए वेट्स लेके आते हो कि इकोनॉमी के अंदर कौन से प्रोडक्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है तो ये एक्सरसाइज जो है अब हर साल थोड़ा ना कर सकते हो कि हर साल आप लोगों से पूछो अब कौन सी अब ये तो बहुत बड़ी एक्सरसाइज है ना करना ये चीज़ समझ में आई ये तो बहुत ही टीडियस एक्सरसाइज है पूरी कंट्री के लिए ये पूरा एक्सरसाइज करना कि अच्छा इस साल क्या हुआ है अब क्या हो गया सो ये आप नहीं कर सकते बार बार सो व्हाट यू डू इज इंस्टेड आप इस बेस ईयर का रिवीजन हर 5 से 7 साल में करते हो इससे पहले 2004 बेस था फिर उसके बाद 2012 बेस आया तो पहले 2000 जब 4 बेस था तो उसमें 2004 में आपने ये सारी वैल्यूज़ 100 कर दी होंगी और फिर ये 100 से होते होते हो सकता है कुछ 170 तक पहुंच गई हो 2012 तक यहाँ तक समझ में आया ये ओवरऑल CPI की इंडेक्स की वैल्यू है
जैसे आपका बीएससी जो है, बीएससी क्या है, एक इंडेक्स ही तो है ना गाइस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई, यस सर। तो वो बेसिकली इंडेक्स ही है। तो आपने इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पर 100 कर दी और 2012 तक आते आते 170 हो गई। बट फिर आपको रियलाइज हुआ कि यार अब तो आइटम्स बहुत ज़्यादा चेंज हो गई, तो आपने इन सबको वापस रीसेट करके वापस 100 कर दिया, आइटम्स की वेटेज चेंज कर दी। अब आप यहाँ से चेक कर रहे हो, अब 2021 आ गया है, ये इंडेक्स की वैल्यू आज की डेट में 170 के अराउंड पहुँच गई है। अब प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर आप क्या करोगे, इसको चेंज कर दोगे 2022 में। आप क्या करोगे, इस अब आपको लगेगा कि ये आइटम बहुत पुरानी हो गई हैं, तो 2018 मान लो, आप ले लोगे कि यार 2018 को हम नया बेस ईयर ले लेते हैं, और यहाँ पर जो भी वैल्यू थी, सपोज यहाँ पर 150 तक पहुँच गया था ये वैल्यू 100 से, तो आप इसको वापस 100 सेट कर दोगे और यहाँ से फिर से देखना शुरू कर दोगे कि इन्फ्लेशन कितना हो रहा है। तो आप पीछे जाके एक नया बेस ईयर ले लेते हो। तो ये भी 2012 जो है हमने कब सेलेक्ट किया होगा, 2015 में सेलेक्ट किया होगा कि हम 2012 को नया बेस ईयर मान रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसी साल बैठ के मैं उसी साल बेस ईयर बना दूंगा उसे। तो 2022 में हम 2018 को बेस ईयर नया बनाएंगे, नए वेट्स लेंगे और उसको 100 सेट कर देंगे। समझ में आया अब? यस सर। पक्का करिश्मा? यस सर। सर ये तो समझ में आ गया, बट सर जब हम करंट ईयर का निकालते हैं, हमारी आवाज़ नहीं आ रही, हमारी आवाज़ नहीं आ रही सजल। इसमें इसका क्या रोल है बेस ईयर का, ये नहीं समझना। किस चीज़ का रोल, किस चीज़ का रोल? सर जैसे कि आपने बताया ना कि करंट ईयर में हम न्यू माइनस ओल्ड करते हैं एंड देन फिर अपॉन ओल्ड करते हैं, देन सर बेस ईयर का क्या रोल है उस टाइम पे उस फॉर्मूले में? उस फॉर्मूले में बेस ईयर का सिर्फ कोई रोल नहीं है, सिर्फ क्या कहते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि बेस ईयर चल क्या रहा है। उस फॉर्मूले में बेस ईयर का कोई रोल नहीं है। अब मान लो, अब क्वेश्चन इज़ कि बेस ईयर का रोल क्या है। अब मान लो मैं अक्टूबर 2021 में इन्फ्लेशन निकलना चाहता हूँ। पहली बात, इन्फ्लेशन जो निकलता है वो कैसे निकलता है, मंथ ऑन मंथ की यूजुअली ईयर ऑन ईयर? अरे ईयर ऑन ईयर निकलता है इन्फ्लेशन हमेशा। जब भी हम बात कर रहे होते हैं इन्फ्लेशन की, तो वो ईयर ऑन ईयर होता है। ओके सर, सीपीआई निकलता है मंथ ऑन मंथ। अरे सीपीआई की बात कर रहा हूँ, ईयर ऑन ईयर कोट होता है हमेशा। इन्फ्लेशन फिगर्स आर ऑलवेज कोटेड ईयर ऑन ईयर। आप मंथ ऑन मंथ भी बता सकते हो, बट ईयर ऑन ईयर कोट होता है हमेशा। जो आप न्यूज़ में सुन रहे होते हो, वो सारी ईयर ऑन ईयर है। यूजुअली इकोनॉमिक डेटा ईयर ऑन ईयर कोट किया जाता है, मंथ ऑन मंथ बहुत कम कोट किया जाता है। याद रखना गाइस, ईयर ऑन ईयर। जीडीपी भी ईयर ऑन ईयर ही कोट की जाती है, ठीक है। एवरीथिंग इज कोटेड यूजुअली इन इकोनॉमिक्स ऑन एन ईयर ऑन ईयर बेसिस। नाउ व्हाट इज दिस ईयर ऑन ईयर? लास्ट टाइम आप मंथ ऑन मंथ क्या बता रहे थे? मैं वो मंथ ऑन मंथ मोमेंटम बता रहा था तुम्हें। ओके सर। तो अब मैं अक्टूबर 2021 में इन्फ्लेशन देखना चाहता हूँ, तो मैं इसको कंपेयर किससे करूँगा फिर, ये बताओ। सर अक्टूबर तो इसको वर्सेस अक्टूबर 2020 से कंपेयर करूँगा ना। यहाँ तक समझ में आई बात गाइज? ये चीज़ क्लियर है कि ऐसे इन्फ्लेशन निकलेगा। अब इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी? इसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए ना, इसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। वो वैल्यू कहाँ से आएगी? मैं दो वैल्यू को कंपेयर करना चाहता हूँ, एक इस वैल्यू को इस वैल्यू नहीं, बट किस चीज़ की वैल्यू सचल, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। इंडेक्स की वैल्यू लूंगा ना मैं, इंडेक्स की वैल्यू। समझ में आया क्या मैं बोल रहा हूँ? इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है? तुम्हारे पास 5 पेपर हैं, ठीक है। मैं तुम्हारा इस साल का रिजल्ट, मैं तुम्हारा सेमेस्टर 3 का रिजल्ट को कंपेयर करना चाह रहा हूँ सेमेस्टर 1 के रिजल्ट के साथ। तो मैं सेमेस्टर 3 को के रिप्रेजेंटेटिव क्या लूँगा, सेमेस्टर 3 के क्या लूँगा मैं? हाउ विल आई रिप्रेजेंट सेमेस्टर 3 का डेटा? सब पेपर से सब बाय एसजीपीए। एसजीपीए लूँगा ना। एसजीपीए इज व्हाट? एन इंडेक्स वैल्यू। इसका एसजीपीए लूँगा ना। What is SGPA? It is nothing but an index. How is it an index? Your paper 1 into उसका weight, paper 2 उसका into weight, paper 3 इसका into weight. For example, अगर आप SEC की बात करो तो उसका weight कितना है? Any idea? कितना weight है गाइस? बताओ। ये तो आपको आपके खुद के पेपर हैं तो पता होना चाहिए। What is the weightage of SGPA of your this thing SEC? अरे 4 points guys, 4 credit points है इसका। कोर पेपर का वेट कितना होता है? 6 होता है। आपने पहले सेमेस्टर में वो पढ़े होंगे ना, वो इंग्लिश हिंदी टाइप्स कुछ, उसका वेटेज कितना होता है? सर 4 होगा या 2 होगा, जो भी अच्छा 4 होगा। आई एम नॉट वेरी श्योर कि 4 था 2 था। तो समझ में आया कि ये आपके मार्क्स हुए, और ये उसका वेट हुआ। ऐसे निकलता है ना गाइस CGPA? यस नो?
यस सर। तो Yes, उस sir. उसको इंडेक्स की वैल्यू को आप लेके हो, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मेरा 9 आया और यहाँ पर मेरा इंडेक्स की वैल्यू 7 आई, तो आप कैसे इंप्रूवमेंट बताओगे? 9 माइनस 7 अपॉन 7, ये हुआ ना आपका इम्प्रूवमेंट परसेंटेज, यस और नो? यस। तो यहाँ पर भी कोई इंडेक्स की वैल्यू होगी ना, तो वो सीपीआई का इंडेक्स, अगर मान लो वो सीपीआई का इंडेक्स एक्चुअली में बेस ईयर में कितना था, 2012 में कितना था वो इंडेक्स की वैल्यू? वो 100 थी। वो अब तक आते आते अक्टूबर 2011 में आते आते वो 170 पहुंच गई मान लो। इजंट इज वेरी सिमिलर टू योर 9। एंड लास्ट ईयर कितनी थी? लास्ट ईयर ये थी मान लो 160। तो आप क्या करोगे? 170 माइनस 160 अपॉन 160, 10 अपॉन 160, 1/16 इज योर इन्फ्लेशन रेट। समझ में आया? इसमें बेस का कोई बेस ईयर का कोई यूज नहीं आ रहा एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये 170 इज इन रिलेशन टू 100 जो बेस ईयर में था, और कुछ नहीं। भूलना भी चाहते हो तो भूल सकते हो इसको। येस और नो गाइज? अगेन दिस इज जस्ट फॉर योर क्लैरिटी, नो वन विल आस्क यू इन द एग्जाम, बट बहुत ज़रूरी है ये चीज़ समझना, नहीं तो आप सिर्फ रट रहे होगे इन्फ्लेशन के बारे में, आप सिर्फ कभी समझ नहीं पाओगे इसको। यू विल बी जस्ट मगिंग इट अप। आई डोंट वांट यू टू मग इट अप, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। समझ में आया? सजल, करिश्मा, त्वदन्या, जिनके डाउट्स थे? यस। Yes, sir. ठीक है। अब जो हम बात कर रहे थे कि ये जो 10 इंक्रीज हुआ है वो दो पार्ट्स की वजह से इंक्रीज, हमने ये जो जो तुम मंथ ऑन मंथ की बात कर रहे थे वो दो, ये किस लिए ये 10 इंक्रीज हो सकता है? ये 10 का इंक्रीज इसलिए हो सकता है कि हो सकता है आपका बेस जो हो वो बहुत छोटा हो। जो हम कह रहे थे ना कि सपोज आपका लास्ट सेमेस्टर में आया ही 5 या लास्ट सेमेस्टर में आपके सिर्फ 4 CGPA आया, तो 9 माइनस 4 अपॉन 4 तो बहुत बड़ा आपको दिख जाएगा, 100% से ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो गया। तो क्योंकि आपका पुराना इतना कम था इसलिए नया वाला बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ये भी एक रीज़न हो सकता है ना इंक्रीज का। यस और नो? दैट मीन्स दिस 160 ऑल्सो कंट्रोल्स ये जो लास्ट ईयर का जो आपका इन्फ्लेशन का इंडेक्स है, दैट ऑल्सो कंट्रोल्स कि कितना इन्फ्लेशन हो सकता है। इसको बोलते हैं हम बेस इफेक्ट। बेस ईयर नहीं गाइस, बेस इफेक्ट बोलते हैं। ये बेस इफेक्ट है। अगर बेस ज़्यादा होगा तो इन्फ्लेशन आपको कम दिखाई देगा कि ज़्यादा दिखाई देगा? दैट इज़ माई क्वेश्चन। अगर आपने ये क्वेश्चन आंसर कर दिया तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। अगर आपको नहीं आंसर किया तो आपको नहीं समझ में आया। अगर बेस ज़्यादा होगा तो इन्फ्लेशन आपको ज़्यादा दिखाई देगा कि कम दिखाई देगा? सर कम दिखाई देगा। से कम दिखाई देगा। एग्जैक्टली क्योंकि मान लो ये 170 माइनस 165 होता अपॉन 165, तो ये वैल्यू क्या रहेगी? 5 अपॉन 165, कम हो गई वैल्यू। और अगर आपका बेस जो है अगर आपका कम होगा, अगर ये वैल्यू 150 होती तो ये आपकी वैल्यू हो जाती 20 अपॉन 150 विच इज़ 1/7। ये 1/7.5 है, 14.28% के राउंड आ जाता, इन्फ्लेशन और बढ़ जाता। और दूसरा हो सकता है मोमेंटम, कि आपका बेस तो चलो ठीक है, आपका अगर ये 170 ही 180 बन जाता तो अपने आप आपका इन्फ्लेशन तेज आ रहा है। तो ये जो वैल्यू है ये आपको मोमेंटम दिखा रही है कि मोमेंटम कितना तेज है, कितना तेज प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और ये बता रही है कि बेस कितना कैसा है। अब समझ में आया गाइस? बेस एंड मोमेंटम। यस सर। हमारी PDF का है। तो हमने गाइस इसके अंदर यही बात करी थी। देखो हमने इसके अंदर ये मोमेंटम और बेस की बात। मोमेंटम जो होता है वो हम मंथ ऑन मंथ देखते हैं, ठीक है? जो करिश्मा तुम पूछ रही थी ना शायद से, या सजल तुम पूछ रही थी, मोमेंटम जो होता है वो मंथ ऑन मंथ देख रहे होते हैं। और प्राइसेस जो बेस इफेक्ट होता है वो ईयर ऑन ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर का देख रहे होते हैं ना हम। लास्ट ईयर अक्टूबर 2020 का देख रहे थे कि इंडेक्स वैल्यू क्या है। बट जब हम मोमेंटम देख रहे थे, जब हम प्राइसेस देख रहे थे, मोमेंटम वाली बात, तो हम यहाँ पर देख रहे थे अक्टूबर 21 के अंदर क्या इंडेक्स वैल्यू, और बेस में चेक कर रहे थे कि अक्टूबर 20 की क्या वैल्यू। अब समझ में आया मोमेंटम एंड बेस का डिकम्पोजिशन?
चलो नेक्स्ट इज और यही आपको कोर नॉन कोर। तो अगर आप देखो इन्होंने इसको क्या किया है, इसी को डिवाइड कर दिया है इन्होंने बेस में और मोमेंटम में। तो अगर आप देखो कि हमारा इन्फ्लेशन जो हो रहा है, इन्फ्लेशन अगर उस वाले पीरियड में देखो तो हमारा कोर इन्फ्लेशन जो है, मेजरली जो कोर इन्फ्लेशन था नॉन फूड नॉन फ्यूल, वो हमारा मोमेंटम की वजह से बढ़ रहा था। मोमेंटम बहुत ज़्यादा तेज था। ठीक है, तो ये एक पॉइंट याद रख लेना कि कोर इन्फ्लेशन जो है, और मेजरली इस पीरियड में इन्फ्लेशन जो था वो कोर इन्फ्लेशन की वजह, वो मोमेंटम की वजह से था रादर देन बेस इफेक्ट की वजह से। बेस इफेक्ट तो इनफैक्ट उसको बाउंड कर रहा था बल्कि। देन उसके बाद ये सारी एग्स वैग्स के उतना डिटेल में आने की ज़रूरत नहीं है। Again, you don't need to get into inflation in states, no one will ask you about it. Then CPI and WPI हमने देखा CPI इन्फ्लेशन जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। उसका रीज़न नाउ गाइज, आई वांट द रीज़न। क्या था रीज़न CPI इन्फ्लेशन का? कौन गाइज, नाउ इज द आंसरिंग पार्ट। कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? किसका वेटेज ज़्यादा है? फूड का वेटेज ज़्यादा है। कितना वेटेज है? 45%। एंड दूसरा आइटम जिसकी वजह से ज़्यादा जो बढ़ रहा है वो क्या है? मिसलेनियस। एंड विद इन मिसलेनियस किस चीज़ की वजह से? ट्रांसपोर्ट एंड हेल्थ। एग्जैक्टली, समझ में आ गया ना। एंड ओवरऑल आप कह सकते हो कि कोर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है मोमेंटम फैक्टर की वजह से। ये कोई नहीं लिखेगा गाइज, आई कैन टेल यू, आई कैन बेट माई लिम्ब ऑन इट। आप 99% इकोनॉमिक्स टीचरों से भी पूछ लोगे तो भी नहीं पता। इट्स ऑल्दो इट्स वेरी लॉजिकल, but you need to know the concept at a very granular level to understand it. हम सिर्फ इन्फ्लेशन के बारे में एज एन इकोनॉमिस्ट हम पढ़ लेते हैं, बट कैसे हो रहा है, उसकी वर्किंग कैसे है, हम वो समझ नहीं पाते हैं कई बार। ठीक है, तो अगर आप ये लिख दोगे तो मतलब you are now writing it as an economist rather than just writing mugging this up and just regurgitating it कि अच्छा यार रट लिया और लिख दिया। अब आपको समझ में आ गया है कि क्या किस फैक्टर की वजह से और क्यों बढ़ रहा है। ठीक है, एंड हमारे यहाँ कोर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। कोर इन्फ्लेशन इस पीरियड में बढ़ रहा था बिकॉज ऑफ बेस की मोमेंटम की वजह से। ठीक है, बस ये हो गया। नाउ कम्स, अब ये देखो ये नीचे WPI की फिगर जा रही है। अब WPI नीचे क्यों जा रहा है? सर नॉन फूड मैन्युफैक्चरिंग का इसके अंदर वेटेज कितना है? 55% वेटेज है, जिसमें ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं हो रहा। और दूसरा फ्यूल का वेटेज अराउंड 13-14% है, 14% मान लो, और वो नेगेटिव टेरिटरी में है। तो इसीलिए, और इसके अंदर फूड आइटम्स की वेटेज ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए ये जो है और ये दोनों ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट ये दोनों का अगर कॉम्बिनेशन करो तो ऑलमोस्ट नेगेटिव है। इसीलिए ये आपको दिख रहा है कि ये जीरो से नीचे जाना शुरू हो गया। यस, आपने CPI में ऐसे क्यों बोला कि कोर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है? कोर इन्फ्लेशन में तो नॉन फूड और नॉन फ्यूल आता है ना। हाँ, तो कोर भी बढ़ रहा है ना, ये देखो ना। मिसलेनियस वगैरह भी तो आइटम्स थी, वो भी तो बढ़ रही थी। जब मार्केट में सप्लाई नहीं है तो यही तो हम देख रहे हैं। ये देखो मिसलेनियस, अप्रैल देखो मोमेंटम कितना ज़्यादा हाई है। फिर उसके बाद देखो अप्रैल में भी मोमेंटम है, इसके बाद जुलाई में भी मोमेंटम है। ये मोमेंटम जो है ये इसको ड्राइव कर रहा है। ये सारा कोर इन्फ्लेशन ही है। सर सिर्फ मिसलेनियस के कारण हम कोर बोल रहे हैं ना। अगर नहीं, सिर्फ फूड और फ्यूल को हटा दो तो उसके बाद सब कुछ कोर में आ गया, सिर्फ मिसलेनियस नहीं है। तो फूड का वेटेज चलो ठीक है, हम कह सकते हैं कि 45% वेटेज हटा दिया उसका, और फ्यूल का वेटेज जो 7-8% है वो हटा दिया, तो बाकी 50% तो बैठा हुआ है ना। हाउसिंग हो गया और ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है ना। Just a second, please.
Yes, guys. So now the question is which inflation is better reflected, which is a better measure. ठीक है. Now और वही यहाँ पर डिफरेंस बता रहे हैं, देखो कि दैट बिटवीन अप्रैल एंड जुलाई 2020 WPI हैज़ बीन द नेगेटिव टेरिटरी वाइल CPI हैज़ बीन अबव 6%. ठीक है. सो ये जो वेटेज का डिफरेंस है, जस्ट अ सेकंड. सो ये जो डिफरेंस है वो यहाँ पर ही दिखा रहे हैं कि नेगेटिव है, और उसका वो भी बता रहे हैं दैट द मूवमेंट इन CPI कंबाइंड इन्फ्लेशन इज क्वाइट कॉन्ट्रेरी टू द वीक डिमांड कंडीशंस इन द इकोनॉमी. तो फूड का वेटेज जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एज अ लार्ज वेटेज ऑफ 39%. ओवरऑल फूड एंड मिसलेनियस आइटम, फूड एंड बेवरेजेस भी है और ज़्यादा ना. यहाँ पर हम सिर्फ फूड के बारे में बात कर रहे हैं, बट हम बेवरेजेस भी ऐड करते हैं तो उसके बाद वो 45% पहुँच जाता है. एंड इफ़ तो हम कई काफ़ी अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं हमें. CPI जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि भाई 6-7% का इन्फ्लेशन अराउंड. माई स्क्रीन माइट गो गाइज फॉर अ सेकेंड. दिस इज़ द प्रॉब्लम वाइल रिकॉर्डिंग द क्लास. या सो CPI का अगर हम इन्फ्लेशन देखें तो CPI हम कह रहे हैं कि 6-7% का इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है, 7% के अराउंड पहुंच रहा है. WPI देखें तो WPI कह रहा है कि बॉस आपका नेगेटिव है इन्फ्लेशन, तो ठीक है. एंड देन IIP देखें. अच्छा, अब IIP देखें तो IIP ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा. व्हाट इज़ IIP? IIP इज़ अनदर इंडेक्स विच इज़ बेसिकली इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है उसका एक इंडेक्स है. इसके अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स का एक मेजर वेटेज होता है. अराउंड 75% वेटेज जो है इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स का होता है. फिर इलेक्ट्रिक का अराउंड 10-15% वेटेज होता है. तो अगर हम देखें ये IIP के फैक्टर्स हैं, तो अगर हम देखें तो IIP ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा है. IIP बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा है. इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है. और WPI ये बहुत स्लो चल रहा है ना. कोविड के टाइम पे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा गाइस? सर नहीं हो रहा. नहीं हो रहा होगा, तो ये लो होगा, ये लो होगा, ठीक है. तो CPI और IIP में जो कोरिलेशन होगा वो हाई होगा कि लो होगा? वो लो कोरिलेशन होगा. तो वही ये बता रहे हैं कि CPI एंड CPI एंड हाँ ये देखो CPI के साथ इन्फ्लेशन एंड ये IIP का जो इन्फ्लेशन है, ये देखो काफ़ी पुअर कोरिलेशन आ रहा है हमारा. ये आपसे कोई पूछ नहीं रहा, बट जनरल बता रहे हैं कि ये ज़्यादा आपस में रिलेटेड नहीं है. अच्छा, अब फिर मुझे बताओ WPI लो चल रहा था, IIP लो चल रहा था, तो इनके बीच में कोरिलेशन हाई होगा कि लो होगा? सर हाई होगा. हाई कोरिलेशन होगा. तो ये दिखा रहे हैं कि हाई कोरिलेशन है इसके बीच में, IIP के बीच में एंड देखो ये ऊपर WPI. सिमिलरली आप कोर इन्फ्लेशन के बारे में बात करोगे एंड CPI के एंड IIP के बारे में बात करोगे तो हाई इन्फ्लेशन, हाई ट्रैजेक्टरी दिखा रहा है. नॉट वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस, बट इन जनरल हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे दिख रही है. इकोनॉमिक एक्टिविटी हमें बेसिकली इसका अल्टीमेट एसेंस ये है. इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यूरिंग कोविड टेल्स अस दैट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वाज हाई, इन्फ्लेशन वाज हाई, WPI was low because of fuel and manufacturing, poor manufacturing, and IIP was also low. This is what the reflection of the economy was. That's all. This is what it. ये टेबल भूल जाना. ये टेबल आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, ना कोई आपसे पूछ रहा है ये टेबल, बट यू शुड नो दिस, ठीक है. And now the last part of the reading which talks about measures to control the inflation. That how did you control the inflation and what measures were taken by the government to control the inflation. यहाँ तक गाइस समझ में आई रीडिंग? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? बिकॉज दिस इज द फाइनल पार्ट ना. बाकी सब कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू वांट टू रीड ऑन ड्रग प्राइसेस तो यू कैन रीड अबाउट इट.
By the way, this drug prices is not the drug prices for which Aryan Khan is in news. This is pharmaceutical drug prices. ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे because of COVID you needed a lot of medicinal drugs in form of say oxygen. वो भी इसी drug prices के अंदर आ जाता है. लिक्विड ऑक्सीजन भी आ जाता है, लिक्विड मेडिसिनल गैसेस भी इसी के अंदर आ जाती हैं, N95 मास्क भी आ जाते हैं. यस सिमी. Sir, I have a question. It's a bit unrelated. Yes. To the topic of inflation. Hmm. It's tax related. So I wanted to ask that as in our country there is a progressive tax system, right? If you're earning more, तो आपको tax ज़्यादा देना पड़ता है. तो सर ये प्रोडक्टिविटी को हैम्पर नहीं करेगा? बिकॉज लाइक या फिर इसके अदर इम्प्लीकेशन हो सकता है कि somebody who's earning more वो फिर वो उसको मतलब टैक्स हेवन्स वगैरह वाला वो आ जाता है यहाँ पे कि वो अपना पैसा बचाने की कोशिश करेंगे. हाँ, तो इंडिया के जो टैक्स पेयर्स हैं, इनफैक्ट आई वाज रीडिंग ऑन लिंक्डइन एन आर्टिकल बाय समवन ऑन लिंक्डइन टुडे, एंड इंडियन टैक्स पेयर्स आर वन ऑफ द मोस्ट अब्यूज्ड टैक्स पेयर्स. मतलब इंडिया में पहली बात तो वही टैक्स पे करता है, ठीक है, जो टैक्स छुपा नहीं सकता. ठीक है, जो आदमी छुपा सकता है टैक्स वो छुपाता ही है टैक्स. अब आई मीन 95% ऑफ बिजनेसमैन विल ट्राई टू सेव टैक्स थ्रू इलीगल मीन्स. मैं टैक्स क्यों देता हूँ? क्योंकि मैं छुपा नहीं सकता, क्योंकि मेरी तो सारी इनकम ही सरकार से आ रही है. अपॉर्चुनिटी मेरे पास भी हो तो मैं भी नहीं दूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैं देखूँ कि मैं टैक्स दे रहा हूँ तो मुझे उसके बदले में सर्विस क्या मिल रही है. तो इन जनरल इंडिया के जो टैक्स पेयर्स हैं, इवन इफ दे आर टैक्स मोर, दे डोंट गेट दैट काइंड ऑफ सर्विस. इफ आई एम पेइंग 30% ऑफ माई इनकम एज अ टैक्स टू दी गवर्नमेंट, एंड फॉर दैट आई शुड हैव मिनिमम नंबर. चलो दिल्ली गवर्नमेंट मुझे चीज़ें प्रोवाइड करती है, बट यू गो टू अदर स्टेट्स, आपको नॉर्मल नेसेसरी चीज़ें नहीं मिलती. आपको रोड नहीं मिल रही, बिजली का कनेक्शन ठीक से नहीं मिल रहा. ये जो प्लेन स्कूल्स जो आसपास हैं वो अच्छे नहीं हैं यूजली बाकी स्टेट्स में. तो ये सारी चीज़ें तो मेरा हक है अगर मैं टैक्स पेयर हूँ. तो एक चीज़ इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है कि यू डोंट गेट दी वैल्यू फॉर योर टैक्सेस. ये एक मेजर इशू है इंडिया के केस में. अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि इंडिया के अंदर इनफॉर्मल सेक्टर इतना है कि यू कैन ईजिली हाइड योर इनकम. सो देयरफॉर पीपल ओनली 7% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन पेज टैक्स, नॉट इवन 7%. और वो पूरा देश ऑलमोस्ट चला रहे हैं वो 7% मुझ जैसे लोग. ठीक है ना. बाकी लोग तो जो एग्रीकल्चर में, पहली बात तो एग्रीकल्चर देखो, 45% ऑफ इंडियाज पीपल और वर्किंग क्लास आर इन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं होता, तो 45% तो वैसे ही चला गया. ठीक है. तो बाकी जो 55% जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, अपनी दुकानें खोली हुई हैं, तो वो टैक्स बचाते हैं. तो अल्टीमेटली जो सैलरीड क्लास है वो बच जाती है, और जो हाई इनकम वर्थ है वो बच जाता है जो टैक्स देते हैं. तो बाकी लोग अपना टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं, और फिर इसी के लिए दे यूज़ समथिंग कॉल्ड एज टैक्स हेवन्स. याद रखना गाइज, हेवन और हेवन में डिफरेंस है. ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बहुत कम टैक्स रेट होता है. फॉर एग्जांपल मोरक्को हो गया, लाइक लिचिस्तान हो गया, देन you have Panama, and then you have Bermuda islands, and ये सारी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स. ठीक है, ये सारी की सारी जो कंट्रीज़ हैं, साइप्रस इज़ अ फेमस एग्जांपल. ये सारी कंट्रीज़ जो हैं ये टैक्स हेवन है. मॉरिशस इज़ अ टैक्स हेवन. तो इनके यहाँ टैक्स रेट बहुत कम है, तो कंपनीज क्या करती हैं, अपना मेन जो ऑफिस है वो यहाँ पर रजिस्टर कर देती है, और फिर जहाँ पर भी कम टैक्स होता है वहाँ पर वो टैक्स पे करती हैं. और यूजुअली टैक्स हेवन में बहुत कम टैक्स होता है, तो इसलिए वो वहाँ से ऑपरेट कर रही होती है. समझ में आया सिमी? सर एंड वन मोर थिंग, ये ड्रग को देख के आ जाए मुझे कि हमारे कंट्री में जो अल्कोहल है वो भी मतलब इट्स अ इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस ओनली, बट दैट्स नॉट अ ड्रग. हाँ, लेकिन सर अल्कोहल को क्या कहते हैं, लीगलाइज कर रखा है, लेकिन ड्रग्स को इलीगल क्यों कर रखा है? बेसिकली अगेन पार्ट ऑफ सोसाइटल हमारा जो इवोल्यूशन है अभी इतना हुआ नहीं है. फॉर एग्जांपल अगर आप यूएस में बात करो, इंडिया में क्या है, इंडिया में देयर इज एन एक्ट कॉल्ड एनडीपीएस, जिसके अंदर आर्यन खान भी जेल में है. यस सर. नार्कोटिक्स एंड नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट. ठीक है, बट ये लिया तो हमने यूएसए से था, और यूएस से हमने यूएस से ही लिया हुआ है. बट यूएस नाउ उनको रियलाइज हुआ सोसाइटी के अंदर कि अच्छा सोसाइटी में बहुत लोग, फॉर इट्स समथिंग लाइक गे एंड लेस्बियन मैरिजेस, कि वहाँ पर सबसे पहले अगर तुम देखो क्रिश्चियनिटी को देखो एंड तुम कैथोलिक क्रिश्चियंस को देखो तो दे आर अगेंस्ट इट.
बट धीरे धीरे उनकी सोसाइटी चेंज हुई, दे आर मच मोर एक्सेप्टेबल, सम स्टेट्स हैव अडॉप्टेड कि अच्छा ठीक है, गे एंड लेस्बियंस are in fact a part of a very part of the society, and then we need to acknowledge them, we need to give them rights as normal couples. तो इसीलिए उनके धीरे धीरे लेजिस्लेशंस चेंज हुए. सेम लेजिस्लेशंस उनका साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एंड ड्रग्स को लेके है कि इफ इट्स फॉर पर्सनल कंजम्पशन, ठीक है, देन यू कैन हैव इट. तो उन्होंने क्वांटिटी भी सेट करी हुई है, उन्होंने कंजम्पशन भी सेट करा हुआ है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप माफिया सेटअप कर लो वहाँ पर बैठ के, ठीक है. तो आप पता चले कि आपने वो क्या नाम था उसका ड्रग लॉर्ड का, कोलंबियन ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार. तो ऐसा नहीं है कि आप पाब्लो एस्कोबार बन जाओ वहाँ पर जाके. तो आप अगर अपना पर्सनल रिक्रिएशनल, तो दैट्स बेसिकली द टर्म इज रिक्रिएशनल यूज़ के लिए, if you are using it, then you, some states, for example California has allowed it, mostly democratic states में allowed है, republican states like Texas वगैरह में allowed नहीं है, पर वहाँ भी आपको मिल जाएगा. तो उन्होंने वो सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं लॉज के अंदर. इंडिया के अंदर अभी भी हम ट्रेडिशनल, हमारा माइंडसेट है, people need to change and the government needs to acknowledge कि this is a new trend in the society. But at the same point of time अगर आप ये trend भी acknowledge करो तो प्रॉब्लम साइमल्टेनियसली आ जाती है कि ये टेररिज्म को भी सोर्स कर रहा होता है. अ लॉट ऑफ दिस इज कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान थ्रू पाकिस्तान टू इंडिया. तो उसकी वजह से इफ़ यू सी द एंटायर तालिबान का सारा रेवेन्यू ही, मेजरली रेवेन्यू ही पॉपी से आता है, बिकॉज उनके पास पॉपी, जस्ट अ सेकंड गाइस, होल्ड ऑन सर, यस गाइस, सॉरी. सो द प्रॉब्लम इज कि क्या बता रहा था मैं आपको, मैं खुद ही भूल गया. व्हाट वाज आई टेलिंग यू गाइस? अफगानिस्तान में हाँ, अफगानिस्तान. तो अफगानिस्तान जो है, इट्स वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पॉपी, which basically from which you basically get all this cocaine and all of और क्या प्रोडक्ट मिलता है इससे, पॉपी से एक और कोई प्रोडक्ट मिलता है, ओपियम. so opioids basically. So you this is the world's largest production area, ठीक है. इसको गोल्डन क्रिसेंट बोलते हैं. दो मेजर एरियाज हैं वर्ल्ड के. एक अफगानिस्तान, यहाँ पर हमारा, हम वी आर सैंडविच बिटवीन दीज टू एरियाज. ये गोल्डन क्रिसेंट है यहाँ पर, ठीक है. और हमारे बिल्कुल हमारे ईस्ट के पास में थाईलैंड और म्यांमार, ये गोल्डन ट्राइंगल है. वी आर सैंडविच बिटवीन दीज टू मेजर ड्रग प्रोड्यूसिंग एरियाज. सो ये यहाँ पर मेजर जो टेररिज्म का जो फंडिंग आता है, तालिबान का मेजर फंडिंग आता है, वो इसी से आता है, ठीक है. और फिर वो पाकिस्तान को बेचते हैं और पाकिस्तान उसको इंडिया को बेचता है. तो अगेन उसमें ISI को बीच में खूब पैसा मिल रहा है. सो दिस इज़ हाउ दिस इज़ ऑपरेटिंग. तो अगर ये चीज़, अगर आप एक तो ये है कि आपको ये चीज़ कट करनी है, द फ्लो ऑफ फाइनेंसेस टू टेररिज्म. But when it comes to your domestic production and when it comes to your अगर आप डोमेस्टिक यूज़ कर रहे हो तो कई स्टेट्स लिबरल लॉज आते हैं. फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश बहुत टाइम से बोल रहा है कि इसको लीगलाइज करो, बिकॉज इट हैज़ अ ह्यूज इंडस्ट्री ऑफ इट. इफ यू हैव हर्ड ऑफ अ प्लेस कॉल्ड मलाना. Yes, sir. I'm from Himachal only, sir. Yeah. So if you talk about Malana as a village, it's a huge tourism place, and who doesn't know कि Malana में क्या होता है. Everyone knows. Sitting in Delhi, who is someone who has never gone to Malana, I know that what is this place famous for, and it's typically you will find Israelis there living there. So अगर हमें पता है, अगर मुझे पता है, आप लोगों को पता है, तो गवर्नमेंट को तो 100% पता ही होगा और पुलिस को भी पता ही होगा. But still it's a running industry. So the thing is that if you want to liberalize it, you can liberalize it for personal consumption, but then you need to see कि उसका societal पे impact क्या आएगा, ठीक है. हमारी एक डेवलपिंग कंट्री है and we're a young country with a lot of untrained minds. तो you never know कि इसका impact बहुत negatively भी पड़ सकता है. So if you ask me, I'm in splits whether to legalize it or not to legalize it. Maybe as a pilot project in couple of states which are well-to-do states you can start it. But ऐसा ना हो कि फिर क्या होगा, वही अल्कोहल के साथ जो सीन हुआ कि जो बिहार में आपको अल्कोहल बैन करना पड़ा, that people were spending huge amount of their money on to drugs because of which the families were impoverished. तो ये एक societal impact हो सकता है. Yes, sir. तो that's about it. थोड़ा ज़्यादा डाइवर्जन हो गया, and I would probably have to remove all of this from the class recording as well. चलो,
Now, measures to control inflation. So when you talk about measures to control inflation, guys, just a second. Okay, guys, we'll quickly finish this. I need to head to college. मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. सो हमने अब हमारा इन्फ्लेशन जो हो रहा था वो फूड इन्फ्लेशन की वजह से हो रहा था, ठीक है. तो फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या क्या किया. हमने बैनिंग ऑफ अनियन, हमने एक्सपोर्ट बैन कर दिया. देखो हमें क्या करना है, हमारा इन्फ्लेशन हो रहा है. इन्फ्लेशन दो रीजंस की वजह से होता है कि डिमांड ज़्यादा हो रही है और सप्लाई कम हो रही है, ठीक है. यही तो मिसमैच इन्फ्लेशन देखा, डिमांड और सप्लाई का गैप जो आ रहा है. सो व्हाट वी डिड वाज, सप्लाई कम ना रह जाए इसीलिए हम एक्सपोर्ट को बैन कर देते हैं. ये चीज़ समझ में आई. जब आप एक्सपोर्ट बैन कर दोगे तो आपके पास बेचने के लिए क्या कहाँ रह जाएगा, सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में. तो उसकी वजह से सप्लाई क्या होगा, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा. सो बैनिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ अनियन, ठीक है. तो आपने पहले बैन कर दिया, फिर उसके बाद आपने क्या किया, लोग होल्ड कर लेते हैं. होर्डिंग समझते हो गाइस. होर्डिंग होता है बेसिकली आप अपने पास, आपको पता है कि प्याज का प्राइस बहुत इंक्रीज होने वाला है, तो आपने क्या किया, 200 किलो प्याज अपने गोडाउन में डाल लिया. मार्केट में स्केर्सिटी क्रिएट कर दी. डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, और जैसे ही मार्केट में प्राइस बढ़ा तो आप वो 200 किलो प्याज लेके आ गए, पहुंच गए मार्केट में. सो जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो ये स्ट्रैटेजी भी यूज़ करते हैं, ठीक है. एंड दैट इज़ कॉल्ड, एंड दैट इज़ बेसिकली स्टॉक लिमिट्स, कि कितना स्टॉक आप अपने पास रख सकते हो. तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि आप स्टॉक ज़्यादा ना रखो, तो गवर्नमेंट ने इम्पोजिशन ऑफ स्टॉक लिमिट्स कर दिया अनियन का, कि इससे ज़्यादा आप नहीं होल्ड कर सकते, टू प्रिवेंट होल्डिंग. तो उससे भी क्या होगा, उससे मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होगी कि कम होगी, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी. अगेन इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा. देन उसके बाद तीसरी चीज़ क्या करा उन्होंने, इम्पोर्ट को फैसिलिटेट किया. इम्पोर्ट को फैसिलिटेट करके क्या होगा गाइस, सप्लाई ज़्यादा होगी. तो आपने सप्लाई पे ट्रिपल तरीके से इम्पैक्ट करने की कोशिश करी, सो दैट आपका मार्केट के अंदर सप्लाई की जो सिचुएशन है वो ईज आउट हो जाए, ठीक है. मेजरली दिस वाज अ सप्लाई साइड इन्फ्लेशन जो हो रहा था फूड कमोडिटीज़ के अंदर. देन अपार्ट फ्रॉम दैट द अदर मेजर इज प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड. अब प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड क्या होता है, इसके अंदर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अ ह्यूज बफर स्टॉक मेंटेन करके रखता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और फिर उस बफर स्टॉक को मार्केट में उतार देता है एकदम से. जैसे ही मार्केट में प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं, गवर्नमेंट ने अपने पास गोडाउन्स में खूब सारा फूड प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, एकदम से इसको मार्केट में ले आएगा. तो उससे क्या होगा गाइस, सप्लाई अगेन इंक्रीज हो जाएगी. सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट होगा, प्राइसेस कम हो जाएंगे. सो the purpose of this price stabilization fund scheme is to efficiently implement and achieve the objective of achieving stable prices in pulses and other products. ठीक है, सिर्फ pulses में नहीं होता, एक्चुअली टॉप्स करके ये चीज़ है, टोमेटोज, पल्सेस एंड अनियंस, तीनों चीज़ों के लिए यूज़ होता है, ठीक है. देन अपार्ट फ्रॉम दैट, क्या सर टमेटोज तो पेरिशेबल है ना. टमेटोज पेरिशेबल हैं तो उसके लिए उनको हम रेफ्रिजरेटेड उसमें रखते हैं. दैट्स अ गुड पॉइंट. उसको हम रेफ्रिजरेटेड उसमें रख सकते हैं, हम ऐसे नहीं रोक छोड़ सकते उसको. पर सर वो कितने दिन रहेगा, मतलब फिर उसको रिप्लेस करते रहते हैं ना, आप उसको रिप्लेस करते रहते हो. ऐसा नहीं है कि आपने रख के उसको 1.5 साल रख लोगे, आप टोमेटो को प्यूरी बन जाएगी, तो उसको आप रिप्लेस करते रहते हो एफिशिएंटली. अरे टोमेटो ये भी तो रखते हैं, सोचो जो आपका मंडी वाले होते हैं वो टोमेटो कैसे रखते हैं, कोल्ड स्टोरेज बिक जाता है ना. अरे बट कहीं ना कहीं से तो आ रहा होगा, वहाँ तो रखना पड़ेगा. अरे वो तो एक दिन में तो बिकेगा नहीं, और जहाँ पर रखे गए होंगे वहाँ पर एक दिन में. तो ऐसा तो नहीं है कि आपने पेड़ से तोड़ के एकदम से ले आए. सो वो थोड़े कच्चे से लाते हैं, सो दैट दे टेक टाइम टू राइट. एग्जैक्टली दैट इज हाउ द गवर्नमेंट आल्सो डज इट. गवर्नमेंट के पास शेल्फ टाइम होता है. गवर्नमेंट बाकी चीजें तो बहुत सालों तक भी संभाल के रखती है, और फिर अरे तो इसके अंदर वेस्टेज भी 40% होता है मैम. सरकार इसमें वेस्ट कर देती है, प्यूरी बना देती है गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट को ये मत सोचो कि गवर्नमेंट बहुत एफिशिएंटली काम कर रही है. गवर्नमेंट ये जो प्रोक्योर करती है 40% वेस्ट हो जाता है. सर ऐसा हर चीज में होता है गवर्नमेंट के साथ. अरे अब सरकार है, गरीब देश है, क्या करें.
सर ऐसे ही पड़ा होता है मंडी में, और फिर बारिश आ जाती है, किसी को कुछ नहीं पड़ा रहता है, प्राइवेट ओनर्स तो सब ले जाते हैं, गवर्नमेंट का ऐसे ही तो पड़ा। इसीलिए तो हम प्राइवेट सेक्टर को बुलाना चाह रहे हैं इस एरिया में। अब बिग बास्केट जैसे लोग जो आ जाएंगे तो ये थोड़ा ना अफोर्ड कर सकते हैं। एक सेकंड होल्ड करूँगा। यस गाइस, सो दिस इज़ अबाउट, तो इस तरीके से हमारा जो वेयर हाउसिंग है बहुत ख़राब है। बट आप लोगों ने वो यूज़ किया कभी बिग बास्केट, या बिग बास्केट डेली यूज़ किया किसी ने? यस सर। अब वो भी तो प्रोक्योर कर रहे हैं। सरकार तो सोच सकती है खाना वेस्ट करने का। क्या आप सोच सकते हो टाटा वेस्ट करेगा ये खाना? बस, तो इसीलिए हमें प्राइवेट सेक्टर चाहिए। सरकार के पास इंसेंटिव नहीं है ना। प्राइवेट सेक्टर के आने से तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे ना। एक चीज़ बताओ मुझे कि जियो के आने से प्राइसेस बढ़े हैं तुम्हारे मोबाइल के कि कम हुए हैं? सर वो तो मोनोपोली सेम होता, यहाँ पर भी तो मोनोपोली चल रही है, सरकार की मोनोपोली चल रही है। पहले क्या होता था? एमटीएनएल अच्छा था कि जियो और ये एयरटेल अच्छे हैं? जियो एयरटेल। फिर पहले क्या था? पहले किसकी मोनोपोली थी? एमटीएनएल और बीएसएनएल की। नहीं सर, इन केस ऑफ फूड आई एम सेइंग। अरे अगर फूड में सिर्फ टाटा को थोड़ा ना आना दिया जाएगा, 4-5 लोग और भी तो आएंगे, आपस में compete करेंगे ना ये लोग सारे, तो हम उनका क्वालिटी इंप्रूव होगी, हमें तो फायदा होगा। कोई और अमीर हो रहा है तो होने दो, क्या दिक्कत है? यस सर। अरे अगर टाटा अमीर हो रहा है, रिलायंस अमीर हो रहा है तो होने दो यार। हमें सस्ता प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट मिलना चाहिए। सरकार कोई बहुत अच्छा काम थोड़ा ना कर रही है। तो उस एंगल से सोचो। पहले सरकारी बैंक होते थे, आज की डेट में एचडीएफसी में आप जाते हो नहीं जाते हो, या आईसीआईसीआई में जाते हो नहीं जाते हो, आपको बेटर सर्विस मिलती है ना। तो मोनोपोली नहीं क्रिएट होने देनी हमें, किसी एक पर्सन की मोनोपोली नहीं क्रिएट होनी चाहिए। 4-5 प्लेयर आपस में लड़ते हों, लड़ने दो उनको। आपको कंपटीशन इंश्योर करना चाहिए। हमारा फोकस इकोनॉमिक्स में कंपटीशन पे होना चाहिए, कि कंपटीशन मार्केट में होना चाहिए। अपना प्रोडक्ट अच्छा मिल जाएगा। अमेजॉन, गूगल ये आपस में लड़ते रहेंगे, बनने दो इनको। इंडिया में और ऐसे प्लेयर्स बनने दो, करोड़पति बनने दो इनको, बिलियनर्स बनने दो, टिल द पॉइंट द कंज्यूमर इज बेनिफिटेड आउट ऑफ इट एंड ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज। मतलब ठीक है, क्या दिक्कत है? इनोवेशन कर रहे हैं, इनोवेशन करके पैसा कमाओ, कौन मना कर रहा है? सर पर प्राइवेटाइजेशन, लाइक ड्यूरिंग प्राइवेटाइजेशन क्रोनी कैपिटलिज्म भी हो सकता है ना। वो चीज़ें आपको क्या, वो छोटे प्लेयर्स है, वो तो सब लाइक उन्हें तो सब पूरा देखो, लॉस हो जाएगा। तो वो आपको इंश्योर करना है कि उसको आप कैसे आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। वो आपको इंश्योर करना है कि उनको आप कैसे लेके आओगे, ऑल्टरनेटिव्स लेके आओगे। तो आप ये भी बोल सकते हो कि कंप्यूटर्स के आने की वजह से जो लोग टाइपराइटर पे यूज़ करते थे वो बेचारे क्या काम करेंगे? फिर जिन लोगों को टेक्नोलॉजी से पढ़ाना नहीं आता, वो जो सिर्फ बोर्ड पे पढ़ा सकते हैं, वो कोविड के टाइम पे कैसे पढ़ाएंगे? तो अडेप्टेशन है ना, चीज़ें अडेप्ट आप करनी पड़ेगी, सिचुएशन चेंज होती है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम है, 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है, आपको चेंज होना है। मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं। एयर इंडिया पहले अपनी तरह से चलता था, अब टाटा अपनी तरह से चलाएगा। सो दीज आर इनएविटेबल चेंजेस इन सोसाइटी। यू हैव टू अकोमोडेट दीज चेंजेस। आप जिस तरीके की नौकरियां सोच रहे थे आज से 5 साल पहले, अब वो नौकरियां एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी अगले 10 साल में। एवरीथिंग विल बी AI ड्रिवन। आपको अगले 15 साल के बाद ड्राइवर की जरूरत ही नहीं है। ड्राइवर की नौकरी जीरो हो जाएगी ऑलमोस्ट। आपकी सेल्फ ड्रिवन कार्स होंगी। जस्ट अ सेकंड गाइस, होल्ड ऑन अ सेकंड। यस गाइस, तो एक्चुअली यहाँ पे मैंने PDS डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल दैट देखा है। सो वंस आई स्पीकिंग टू अ फार्मर, तो वो बेसिकली हमारी शॉप पे सोयाबीन के सीड्स लेने आया था, एंड दैट टाइम प्राइस ऑफ द सीड वर 100 per kg, एंड गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च कर देती है, पर जो सोयाबीन जिस टाइम आना रहता है, जिस टाइम वो सो करना रहता है, उस टाइम तुम्हारा किस चीज़ का शॉप है तो धन्य? सर बेसिकली मेरे पापा मल्टीपल बिजनेसेस करते हैं, तो हम ऐसे सीड्स भी सेल करते हैं। तो कौन सी कंपनी के? महेको के शेयर सीड्स, मोंटेंसो और मॉन्सेंटो और महेको के सीड्स बेचते हो? सर ये डिपेंड करता है, मतलब जो नॉर्मल जैसे सोयाबीन का हार्वेस्ट आ गया, तो फिर हम वो भी प्रिजर्व करके रखते हैं। अच्छा, तुम सीड्स भी प्रिजर्व करके रखते हो? बड़ा सीड रहता है ना, ठीक है, समझ में आ फिर गया। उसी को वापस सेल भी कर सकते हैं। तो सर बिकॉज वो जो बेटर क्वालिटी के सीड्स आते हैं ना, वो काफी महंगे आते हैं, तो फार्मर्स इतना वो नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या हुआ है तो धन्य, यहाँ पर क्या हुआ है, ये इस मार्केट को कैप्चर कर लिया मॉन्सेंटो ने।
यहाँ पर मॉन्सेंटो ने कैप्चर किया हुआ है, यूएस की एक फर्म है जिसने मार्केट सीड्स की कैप्चर करी हुई है। तो जो यहाँ पर इसलिए प्राइसेस जो हैं वो कंट्रोल में नहीं आ पा रहे हैं, और गवर्नमेंट जो है अगेन बहुत इनफिशिएंटली काम कर रही है। यहाँ पर हमें एग्रेरियन रिसर्च में प्राइवेट प्लेयर्स चाहिए, तब जाके आपके सीड्स सस्ते हो पाएंगे। हाँ, पर सर मेरा पॉइंट ये है कि व्हेन आई वाज स्पीकिंग टू दैट फार्मर, उसने बोला कि फिर उनको लोन लेके हमारे शॉप पे आना पड़ता है, फिर वो सो कर देते हैं, एंड उसके बाद गवर्नमेंट्स की सब्सिडी से सीड्स आते हैं, तो वो सीड्स कुछ काम के नहीं रह जाते बिकॉज दे हैव ऑलरेडी सोन। ऑल्सो जब हार्वेस्ट आता है तो उनको जल्दी से पैसा चाहिए होता है बिकॉज दे हैव टू पे बैक देयर लोन्स। ऑल्सो उनको नई क्रॉप बोने के लिए नया सीड लेना पड़ता है, बट तब तक गवर्नमेंट के ये खुलते नहीं है पोर्टल्स जिसमें ये लोग बेच सकते हैं गवर्नमेंट को, एंड सो दे हैव टू सेल इट टू प्राइवेट। क्यों ऐसा करते हो? मतलब वो तो फार्मर्स के लिए। देखो मार्केट में देखो हर कोई प्रॉफिट के लिए काम करता है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर इनएफिशिएंसीज हैं गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट सिस्टम में। तो गवर्नमेंट का जो पूरा बिजनेस है ये लेट चल रहा होता है, आराम से ब्यूरोक्रेसी में काम कर रहे होते हैं ये लोग। तो इसीलिए यहाँ पर हमें प्राइवेट प्रोक्योरमेंट चाहिए। जो नए एक्ट्स आए हैं एग्रीकल्चर में, जो लोग सारे अपोज कर रहे हैं, वो प्राइवेट सेक्टर को ले आएगा, और प्राइवेट सेक्टर इमीडिएटली काम करेगा। प्राइवेट सेक्टर बैठ नहीं सकता कि मुझे इमीडिएटली और प्राइवेट सेक्टर तो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट करके बैठ जाएगा कि आपके उगते के साथ ही हम उठा लेंगे सारा प्रोडक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व, और गवर्नमेंट का मेन काम ये नहीं है एक्चुअली में करना। तो इसीलिए गवर्नमेंट इनएफिशिएंट है, और इसीलिए सारे बीच में इसमें सारे पैसा कमा रहे हैं। माय पॉइंट कि सर ऐसा क्यों होता है, मतलब इतने इनएफिशिएंट ये क्यों काम करता है गवर्नमेंट? क्योंकि जनरलिस्ट से भरा हुआ है, जनरलिस्ट से भरा हुआ है। सेम थिंग लाइक टीचिंग, आपको हर तरीके का टीचर मिलता है ना, सैलरी तो सेम है। हर तरीके का स्टूडेंट है, स्टूडेंट आप सारे सेम पैसे दे के आए हो, बट सबका परफॉर्मेंस अलग है। क्लास में इस वक्त 60 स्टूडेंट्स बैठे हैं, क्या 60 की 60 सेम चीज़ सुन रहे हैं? ह्यूमन नेचर, सिंपल सी बात है। Excuse me, sir. यस So you said about the contract farming ना सर, जो फार्म लॉज में है, पर उसमें ये भी लिखा हुआ है कि पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, पर उसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर वो बाद में इफ दे फेल टू लाइक प्रोड्यूस दैट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, दे हैव टू पे कंपनसेशन बैक टू कंपनीज। उसको वर्कआउट करने की जरूरत है। देखो, आई एम नॉट सेइंग दीज आर परफेक्ट लॉज, बट इन अ सेंस जो आज की सिचुएशन है उससे इम्प्रूवमेंट है। ऑल आई एम सेइंग दैट, आई एम नॉट सेइंग दीज आर द परफेक्ट लॉज। पहले ही लाइक हमें पता है कि वेदर की वजह से भी लॉस हो जाता है फार्मर्स को। वो सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है सौजन्या, आई एग्री, वो सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है, बट थिंक फ्रॉम अ प्राइवेट प्लेयर एज वेल। अगर मैं तुमसे बोलूं कि मुझे 2 महीने बाद आईफोन 13 चाहिए और तुम मुझे आईफोन 11 दे दो, तो विल इट बी फेयर कि मैं तुम्हें उतने ही पैसे दूंगा? बताओ मुझे। फिर अगर मैं आईफोन 13 का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो मुझे आईफोन 13 चाहिए ना। यस सर, पर हम लाइक इंडियन फार्मर्स की तरफ से देखें तो ज्यादा से ज्यादा जो फार्मर्स है दे आर लाइक पुअर ना सर। अगर हाँ, वो तो अमीर उसमें होते तो चलेगा, तो हम नहीं तो दोनों को उसीलिए equally उसके लिए देख सकते हैं। इंश्योरेंस की जरूरत है, उसमें बेटर कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स की जरूरत है, कॉम्पनसेशन के क्लॉजेस को कंसिडर करने की जरूरत है। बट प्राइवेट प्लेयर भी अपने आप में गलत नहीं है। अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे एक क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, तो मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए, उसके लिए मैं आपको पे करने के लिए रेडी हूं। इट्स प्योर बिजनेस, एज सिंपल एज दैट। अगर मुझे अल्फांजो मैंगो चाहिए और आप मुझे लंगड़ा मैंगो दे देते हो अल्फांजो के नाम पे, तो मैं पागल थोड़ी ना हूं जो खरीदूंगा उसको। नो सर, नॉट लाइक दैट। उसमें लिखा हुआ है कि जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है तो दे विल लाइक हेल्प देम इन बाइंग सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड ऑल। हाँ, तो हाँ, सब कुछ है। तो बाद में उसका भी पे करना पड़ता है, और फॉर लाइक he failed to give the back ना सर, इसलिए उसका भी कंपनसेशन पे करना पड़ता है। लाइक दो पहले तो ऐसा नहीं था ना सर। हाँ, तो फिर ठीक है, आप पुराने सिस्टम में चले जाओ। आपको नहीं पसंद आ रहा पुराने सिस्टम में, सर जो पुराना सिस्टम कोई मना थोड़ा ना कर रहा है आपको। मैं कहता हूँ आपको ये थोड़ा ना कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, कोई आपको जबरदस्ती तो साइन नहीं करवा रहा आपसे। यस सर, पर क्या होता है ना सर, जब बड़े बड़े प्लेयर्स आ जाते हैं तो पहले साल खूब पैसे देते हैं, लाइक खूब प्राइस देते हैं। इस साल ओके 200, तो सारे जो छोटे छोटे प्लेयर्स थे वो तो चले जाते हैं। तो उसके बाद अरे सरकार तो फिर भी बैठी है, सरकार ये थोड़ा ना कह रही है कि मैं नहीं हूँ, सरकार को भेज दो। सर तब तो सर कौन चाहेगा कि
कि एपीएमसी मंडी के अंदर जाऊं तो मार्केट प्राइस लाइक से सब पे करूं फिर तब परचेज करूं। बिल्कुल। अगर वो लोग एपीएमसी के बाहर परचेज करेंगे तो कोई सेल्स नहीं, कोई टैक्स नहीं, तो वो क्यों अंदर जाके खरीदेंगे? वो तो बाहर ही खरीदेंगे। हाँ तो बिल्कुल। एपीएमसी मंडी तो अपने आप बंद हो जाएंगे। नहीं, एपीएमसी मंडी जो लोग चाहते हैं कि एपीएमसी में ही बेचें, ज़रूरी थोड़ा ना कि सारे कहेंगे कि हम बाहर ही बेचेंगे। गवर्नमेंट ऐसा थोड़ा ना कह रहा है कि एपीएमसी मैं बंद कर दूंगी। अगर आपको खरीदने वाले कोई नहीं होंगे ना सर। फिर भी चल, ऐसा नहीं है ना कि जीरो हो जाएगा। आज की डेट में भी एमटीएनएल बीएसएनएल है ना। आप अगर दूर दराज चले जाओ, पोस्ट ऑफिस आपको मिल जाएगा ना। तो फिर तो गवर्नमेंट ये थोड़ा ना कह रही है कि मैं बंद ही कर दूंगी पूरा का पूरा सिस्टम। तो पर सर जब भी और 2 प्लेयर आ जाएंगे, 3 प्लेयर आ जाएंगे तो अपने आप कंपटीशन बढ़ जाएगा। और फिर इन फार्मर्स को भी अपना फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत है। आप इकट्ठे होके एक साथ अपना प्रोडक्ट बेचो रादर देन इंडिविजुअल बेचने की बजाय। दिस इज कॉल्ड एन एफपीओ, रीड अबाउट दैट। कि फार्मर्स को अपना यूनियन बनाने की जरूरत है एंड देन नेगोशिएट देयर टर्म्स विद कॉर्पोरेट्स, जैसे अमूल ने अपना बनाया है, जैसे अमूल ने अपना बनाया हुआ है। तो things are much more in detail. चलो guys, let's complete this. ठीक है, we will talk more about all of this in the next class. पहले जल्दी से इसको complete कर लो। I'll be late for my other classes as well. मुझे कॉलेज पहुंचना है। तो ऐसे ही सिमिलरली हमने बफर स्टॉक पल्सेस के लिए यूज़ किया, ठीक है, एंड देन हमने बाहर से पल्सेस और ख़रीद ली। सो दैट इज़ ऑल दैट यू डिड टू मॉडरेट दी प्राइसेस। एंड दीज आर दी अदर, ये जो गवर्नमेंट के मेजर्स हैं, दीज आर दी मेजर्स दैट द गवर्नमेंट टुक फॉर इंक्रीजिंग द सप्लाई इन द मार्केट। all of them are mentioned here. ठीक है, so this is all about your inflation in this. ठीक है, we'll take up more questions on inflation in the next class, and till then what I've also sent you is I've also sent you this particular article. Go through the written part जो मैंने हम highlight किया हुआ, at least go through that, and we will start with this. In the next class we'll try to finish up this entire reading because we've already spoken at length about COVID phase 1 and phase 2. इसमें सिर्फ phase 1 के बारे में बात हुई है. So we have already talked about a lot in this respect, but read it in general. Just give it a general read and see if you can understand it, and then we will quickly go through the entire chapter tomorrow in the next class. ठीक है guys? Okay, sir. Okay guys, so let's meet on Thursday then, guys. Okay, bye guys. Jai Hind. Yes, thank you, sir. Thank you, sir.